Assalamualaikum class, welcome back to the class. I hope you people are doing great and fine. Walaikum assalam. Okay class, so we had basically done two different points. We went through their explanation and their poetic devices, the usage of poetic devices. We'll be sharing the notes regarding them very soon. We are shifting towards our grammar portion because you people were saying that we need to now move towards grammar portion. So, starting with the phrase and different types of phrases today, and this specific discussion is included in your objective paper, which is considered to be very important and significant type of section. Difference between phrases and clauses. So we will be basically going through the definitions and then we will be covering their different types. So let me know from your side that what do you think about a phrase? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Any idea? Okay. Okay, Maham. So a group of words that give us an incomplete meaning or sense. ठीक है जी, good. So basically, let me introduce the introduction of phrase because you people, I think, have no idea, or if you people are not telling. So basically, a phrase is a group of words first that you should know about the definition of phrase. That it is basically a group of words. It is not a single word, it is a group of words. Secondly, it does not give basically a complete sense. Okay? So, incomplete sense is here. It conveys an incomplete sense. And thirdly, it does not have basically has subject and verb. Due to which we say that phrase आपको complete sense नहीं देता. For example, let me write the sentences or group of words over here. If I say that uh, under the table, ठीक है, या in the room. Now they are the examples of phrases. We know that we are talking about something which is under the table, but that something is not known to us. We are not getting a complete sense. In the room, we are having an idea that we are discussing about something that is in the room, जो room में है, but we are not getting the complete sense कि क्या है room में. ठीक है, either it is a boy, either it is a girl, either it is our father, either it is our mother, either it is a non-living thing, either it is a living thing. Basically, we do not know about the subject, we do not know about the verb, which is basically restricting us to not get a complete sense. So ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको आप कहते हैं फ्रेजेस, जो आपको सेंस तो आसान अल्फाज में कि आपको सेंस तो मिल रहा होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा होता. इसके साथ साथ इन ग्रुप ऑफ वर्ड इधर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा या कोई वर्ब नहीं नजर आ रहा, इनको हम कहते हैं कि दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्रेजेस. वालेकुम अस्सलाम सारे. ठीक है, अब इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं. ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट नाउन फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं, एडवर्बल फ्रेज हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज हैं. इसके अलावा 4 to 5 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं. तो आज जो हम स्टार्ट ले रहे हैं
phrases की type से, the very first one, okay, got the idea in the introduction of the phrase? समझ आ गई आप लोगों को इसकी? जी, and what about others? ठीक है. Okay, class, so types of phrases are here. The very first one is a positive phrase. We are not starting with a noun phrase and all those types of the phrase. We are starting with the complicated one, that is a positive phrase. It is not pronounced as a positive, it is pronounced as a positive phrase. So basically these type of phrases give you extra information which is not needed in a sentence, and if we remove this extra information we still get a complete sentence. For example, if I say that Islamabad, a beautiful capital, ठीक है, is known for its scenic scenery. Now, in this sentence, basically, in this specific sentence, these group of words are beautiful capital. अगर आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिमूव कर दें, द सेंटेंस इज स्टिल कंप्लीट. ठीक है, इस्लामाबाद इज नोन फॉर इट्स सीनिक सीनरी. लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट योर नाउन इस्लामाबाद. ठीक है, बेसिकली दे आर एक्सप्लेनिंग योर नाउन. और अगर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप रिमूव भी कर दे, द सेंटेंस स्टिल इज कंप्लीट. ऐसे फ्रेजेस को हम कहते हैं ए पॉजिटिव फ्रेज which gives you extra information or which explains your noun. ठीक है, those phrases is called as a positive phrase. Second example हम कर लेते हैं. खैर आजम, I have repeated it, Muhammad. I am saying that the group of words which give you an extra information about noun is known as a positive phrase. Khair Azam, the founder of Pakistan, was an intellectual. प्लस कि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर लीव करते हैं, बट be mindful of this thing that these phrases and clauses will be discussed by me in a very detailed and comprehensive manner. And then जब आपके stand ups और pre boards और board के एग्जाम्स होते हैं तो सबसे complicated parts जो आपको लगते हैं वो यही होते हैं. And we will be like consuming 4 to 5 lectures over these types. So you need to be present here, and if you are like having any complication or if you are not getting anything, you need to ask me. ठीक है? Okay, so Quaid the founder of Pakistan, was an intellectual. What do you think? इसमें a positive phrase क्या हो सकता है? Okay, good, Amnish, but you have to write it in commas, basically. The founder of Pak, ठीक है, Minahil Maham, the founder of Pakistan. The founder of Pakistan, ठीक है, Amnish. So basically, this group of words is known as a positive phrase. Got it? ठीक है जी. So the next one is class absolute phrase. इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में मेंशन कर देती हूँ कि इट मॉडिफाइज
द होल सेंटेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर वॉइस ट्रेमलिंग विथ fear, she told the truth. Or if I say that the sun having set, the villagers returned home. तो क्लास बेसिकली जो एब्सोल्यूट फ्रेज है होता है आपका, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा हमने पढ़ लिया है, जो आपका था ए पॉजिटिव फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज। ए पॉजिटिव फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज में क्लास एक डिफरेंस आप लोग को याद रखना चाहिए कि ए पॉजिटिव फ्रेज आपके नाउन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट फ्रेज है ये आपके होल सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है। दोनों में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनको रिमूव कर दें आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेकिन जो आपका ए पॉजिटिव फ्रेज होता है वो आपके नाउन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। और जो आपका एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो आपके सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। जैसे हर वॉइस ट्रेमलिंग विथ फियर, शी टोल्ड द ट्रूथ। उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने फिर उसने सच बोला। अब ये जो पूरा एक सेंटेंस है, दे आर गिविंग यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट इज गिविंग यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट इट इज मॉडिफाइंग योर सेंटेंस, नॉट योर नाउन। And without this group of words, the sentence still is complete, but they are explaining your sentence. So यहाँ जो सारा एक फ्रेज है, हर वॉइस ट्रेमलिंग विथ फियर, ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट फ्रेज की। इसी तरह द सन हैविंग सेट, द विलेजर्स रिटर्न होम। ठीक है, विलेजर्स अपने सॉरी घरों की तरफ पहुंचे गए। ठीक है। जब सन ने सेट होना यानी कि ग्रुप होना स्टार्ट हुआ। तो द सन हैविंग सेट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज बेसिकली मॉडिफाइंग योर होल सेंटेंस, नॉट योर नाउन। इसकी जरूरत नहीं है, इसको अगर आप रिमूव भी कर दें सेंटेंस इज स्टिल कंप्लीट, बट बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग योर होल सेंटेंस इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर एब्सोल्यूट फ्रेज। गॉट इट? But ma'am, it contains a subject and a verb, then how it is phrased? Okay, good question. So it has a subject, it has a verb, but the third aspect of the phrase is that it doesn't give you a complete, gives you an incomplete sense. ठीक है, फर्स्ट टू अगर इस पे फुलफिल्ड हो रहे हैं, हमारा थर्ड एस्पेक्ट इसका फुलफिल्ड नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल गिविंग यू एन इनकम्प्लीट सेंस। तो सन तो नाउन है, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, इसको आप कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। आपने सिर्फ सन की बात नहीं करनी। ठीक है। द वेदर बीइंग टू कोल्ड, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ठीक है जी, गुड। अब देखिए मौसम के, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज, लाइक जो सारे ने सेंटेंस बनाया, द वेदर बीइंग टू कोल्ड वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, व्हाट वुड बी द translation in Urdu of the first part, the weather being too cold? मौसम के लाइक ठंडा होते हुए। ठीक है, ठंडे मौसम की वजह से। ठीक है, ठंडे मौसम की वजह से, तो फिर क्या हुआ? वी आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज योर फ्रेज। जो इसका स्पेसिफिक सेंटेंस बन रहा है ना क्लास की, अरीबा ने जो सेंटेंस बनाया है, ठंडा ठंडे मौसम की वजह से ये बन रहा है, मौसम बहुत सर था, इट इज नॉट लाइक बनाया ये बनता है, बट इट इज देन ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। बीइंग का मतलब आपका, आप इसका मतलब होता है वजह से, ये होते हुए, मौसम के ठंडे ठंडा होते हुए। ठीक है। ओके।
सो इसमें क्लास मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में आपका एब्सोल्यूट फ्रेज कौन सा है। शी वेटेड फॉर हर मदर, हर आइज ऑन द वॉच। It can come before, it can come after the actual sentence, as I have mentioned over here. ठीक है, चलो गुड एग्जाम्पल। ठीक है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक तलहा ने क्वेश्चन पूछा था कि ये तो हमारा इसमें तो सब्जेक्ट भी है, बट इन दिस सेंटेंस वी डू नॉट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी डू नॉट हैव अ वर्ब, एंड अगेन इट इज नॉट गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस। आईज ऑन द वॉच, तो फिर क्या हुआ हमें तो नहीं पता। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज अ फ्रेज। ठीक है क्लास, सो आई थिंक इट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन प्लीज। नो। मैम, ये जो आपने सेंटेंस बनाया है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अच्छी ट्राई की है। ये क्यों सही नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ अभी कुछ देर बाद। दिस इज एन एब्सोल्यूट सेंटेंस। नो, इट वाज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, नॉट अ सेंटेंस। इन द कॉर्नर ये आपका आ जाता है एडवर्बल फ्रेज। ठीक है, जहां आपको प्लेस के बारे में बताते हैं। Okay. So the next one is class. I don't know what is wrong with the markers today, but you people have to bear. The next one is infinitive phrase. Very easy. अच्छा, तो infinitive phrase की first you people need to know about infinitive. Infinitive is a type of verb basically which uses to plus base form. Base form means first form of the verb. For example, he used to sleep. ठीक है, so to and this first form of the verb combined is known as infinitive. Infinitive phrase basically have the same introduction. For example, if the sentence is he wants to become a doctor, ठीक है, we need to find a solution today. तो ये जो क्लास इंफिनिटिव है उसमें आपका सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, उसकी एडिशन होती है। लेकिन बोर्ड कहाँ गया है जी? अच्छा, इन द सो मैम वी हैव टू फोकस मोर ऑन द एक्स्ट्रा डिटेल एंड नॉट ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। यस, he made his point by yelling eyes everywhere except in his opponent's eyes. What would this be? Correct. Eyes everywhere except, यस यस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो आपका ये जो सेकंड पार्ट है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एब्सोल्यूट फ्रेज, infinitive phrase. Let me describe it, Talha. So infinitive phrase is a type of phrase which basically contains to plus first form of the verb. Along with that, we have any type of object there as well. सिर्फ टू और बेस फॉर्म की आपने बात नहीं करनी, आपने टू को इंक्लूड करके, फर्स्ट फॉर्म को इंक्लूड करके, उससे आगे जितना भी पार्ट होगा, ठीक है, आइदर योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सारा आपने उसमें इंक्लूड करना है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब यही है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आगे जितना भी पार्ट है सेंटेंस का, वो इंक्लूड होगा इंफिनिटिव फ्रेज में। ठीक है, सो हु का जो सेंटेंस है शी हैज टू ईट हर लंच, तो इसमें जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो है टू ईट हर लंच। सिर्फ टू ईट नहीं होगा, टू ईट करेंगे तो वो आपका इन्फिनेटिव होगा।
He used to go outside for walk daily. To go outside for walk daily, in this sentence, we have this group of words as infinitive phrase. Got it? To win the race. ठीक है अब्दुल गुड. I want to read this book. ठीक है. ठीक है. He trained every day to improve. ठीक है. सारे to read books. ठीक है. Good. Yes, of course. जरूरी नहीं है कि आपका ये infinitive sentence के mid में भी हो. प्लस स्पेसिफिकली लाइक अगर आप टाइप्स की डिस्कशन करें ना तो ये आपने सारे पार्ट को इंक्लूड करना है. लेकिन मैंने कुछ पेपर्स ऐसे देखे हैं जिसमें सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. कुछ पेपर्स में सिर्फ इसको अंडरलाइन किया होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और उनमें से आपसे फ्रेजेस पूछे होते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज. ठीक है तो वो भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस, उसमें से आप लोगों ने टू से स्टार लेके सारा पार्ट को इंक्लूड करना होता है. ठीक है. और ये जो टू है ये आपके सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी. टू एयर इज ह्यूमन. ठीक है. दिस इज अ फेमस प्रोवर्ब बेसिकली. सो टू प्रेस नीड्स नथिंग. ठीक है. मूड, सो यू आर द न्यू कमर. ठीक है. दुआ गुड. So the last types for today class, then we will be concluding our class. They are gerund phrase and participle phrase, and I hope you people must have the knowledge related to gerund. Do the honors please and let me know that what do you think about gerund. वो जो लास्ट वाले टॉपिक्स हमने किए उससे एमसीक्यूज, उनसे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज ग्रुप पे शेयर किए हैं. ठीक है. आज से मैं दोबारा, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ उस पे ग्रामर पे आए हैं, सो आई विल बी अगेन शेयरिंग. आई कांट अंडरस्टैंड मैम. क्लास टाइम इज टाइम फॉर क्लास स्टडीज. ठीक है. ठीक है. ठीक है. एक्टिंग. ठीक है अब्दुल गुड. ठीक है क्लास. So as you people are having another class, I thought better to go for gerund and participle today, but most of the students are saying that you people have another class, so we will be basically covering all the types of the phrases along with a complete and comprehensive definition and examples of gerund and participle tomorrow then. I personally don't know, but I have heard that they are having some issues, personal issues at family. We are being told like that. ओके. सो हूर हम स्टार्ट करते हैं. ऐसे राइटिंग पर भी आते हैं इम्प्रूवमेंट ग्रुप में. ठीक है मैम. वहाँ भी मैं आज एक्टिव होती हूँ. ठीक है. मैं एक्टिव होती हूँ वहाँ पे. ओके क्लास. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर.